Hello class, Assalamu alaikum. I hope that you will be fit and fine and you must be enjoying our videos which we have built for you that are based upon the different sorts of the subjects. So as usually guys, I have also brought a splendid topic for you as I hope that you must enjoy my previous topic that was based upon the poem by name The Seven Ages of the Men. So again I brought a splendid topic for you that is based upon the poem, the second poem for the second year class. The name of this poem is class the Man of Life of Pride, which is written by the Thomas Campion. So guys, हम आपके लिए एक और टॉपिक ले आए हैं जो कि पोएम पे मुश्तमिल है, जो कि हम अब डिस्क्राइब करेंगे. As usually we will describe in such a way that first of all we will describe the introduction of the poet. After that we will describe each and every stanza of the poem. Actually this poem is based upon the sixth stanza. After that in last I will tell you the summary. So guys, before going towards our topic, I will tell you one thing that be quiet and very calm at your homes and be very kind and polite to everyone because क्योंकि उर्दू में एक मुहावरा है जो कि कहा जाता है कि भाई तेज और तीखी जुबान से अगर आप शहद भी भेजोगे तो वो भी कोई नहीं लेगा, अगर मीठी और सुरीली जुबान से आप मिर्ची भी भेजोगे तो वो भी सेल हो जाएगी. तो गाइज ये जो पोएम है स्पेशली इसी चीज पे बेस्ड है कि अ मैन हु लीड्स अ प्रॉस्पेरस लाइफ, हु लीड्स अ calm लाइफ may gain a huge success in his life. So guys, चलते हैं हम अपने पोएम की तरफ और पोएम से पहले हम चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ जो कि थॉमस कैंपियन का है. तो चलो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. So class, let's learn about the poem. So class, the Thomas Campion was born in London in 1567. Class, further he studied, he went to the Cambridge University but he didn't get the degree because after the 4 years he had left this university. Class, Thomas Campion had wrote many poems, but among these poems, this poem is known as one of the pompous poem in his work. The name of this poem is, guys, There is a Garden in Her Eyes, which is written for the sake of the beauty of the girl. Class, he was a scholar, lawyer and musician, and he also wrote a lute songs. Class, हम lute songs उसे बोलते हैं, the songs which are sung on the guitar. हम उसे lute songs बोलते हैं. Let's move another slide. That he is known for his simple style and simplicity in this poem. Now class, let's move towards about the poem. Another slide is for you that in this poem these are the true words carries the profound thoughts and feelings of the poets. क्लास जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो एक पोइट की ट्रू थाट्स हैं और उसकी फीलिंग्स हैं. एन अप्राइड मैन इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द विम्स एंड विशेस. इस पोइम में ये भी कहा गया है कि एन अप्राइड मैन यानी एन ऑनेस्ट मैन जो है वो हर किस्म की विम्स यानी विम्स एंड विशेस, विशेस यानी ख्वाहिशें और विम्स यानी उम्मीदें, हर उम्मीदें और हर ख्वाहिश से ये आज़ाद होता है. So furthermore, an upright man dedicates his existence to the God. ये अपने आप को पूरा का पूरा खुदा के हवाले कर देता है. His faith in God remains firm and unshaken. ये खुदा पे बहुत बड़ा भरोसा करता है. He avoids worldly temptations. ये दुनिया के फिजूल कामों में नहीं आता या ये दुनिया के चक्करों में नहीं आता, ये दुनिया की ख्वाहिशों में ये कभी नहीं आता. Let's move another slide class. This is a spiritual as well as a classical poem. ये spiritual poem भी है और classical poem भी है जो कि in simple words में लिखा हुआ है. Words as well as it is merely about the religious phenomena. ये पूरा का पूरा जो है ये एक मजहबी phenomena के बारे में है या activity के बारे में है. क्लास चलते हैं हम स्टेंजा पे, पोएम के स्टेंजा पे. फर्स्ट स्टेंजा हमारा ये है कि द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, यानी ये क्लास ये पोएम जो है एक ऐसे बंदे के लिए गाया गया है या लिखा गया है जो कि अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारता है. क्लास अपराइट का मतलब नीचे लिखा हुआ है एन हॉनेस्ट लीडिंग लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारता है. उस गिल्टलेस हार्ट इज़ फ्री, जिसकी दिल हर बुराई से पाक होती है, फ्रॉम ऑल द डिसऑनेस्ट डीड्स, और वो हर बुरे अमल से पाक होता है. और थॉट ऑफ द वेनिटी, और वो फ़ख्र से भी आजू होता है, यानी वो फ़ख्र से भी पाक होता है. ना वो फ़ख्र करता है और ना ही उसका जो दिल होता है वो बुरा होता है, ना ही वो गलत काम करता है डिसऑनेस्ट डीड्स, ना ही वो बुरे अमल करता है. सो क्लास चलते हैं हम अपने दूसरे स्टेंजा पे. इसमें शायर क्या कहता है, कहता है कि द मैन हु साइलेंट डेज एंड हार्मलेस जॉय आर स्पेंट, वो बंदा जिसके दिन
मतलब हार्मलेस यानी दुख में भी आसानी से कट जाते हैं। होम होप्स के नॉट डिल्यूड, और उसे ना ही कोई ख्वाहिश ना ही कोई उम्मीद उसे बहकाती है। नार सारोज डिसकंटेंट, और ना ही वो किसी भी किस्म के दुख से परेशान रहता है। यानी गाइस नीचे आप देखिए कि मुख्तलिफ वर्ड्स की जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग नीचे दी गई है। साइलेंट का मतलब है जैसे क्वाइट, हार्मलेस का मतलब जैसे नुकसान, डिल्यूड यानी धोखा देना, बहकाना, और सारो यानी डिसअपॉइंटमेंट या सैडनेस यानी दुख, डिसकंटेंट यानी डिससेटिस्फिकेशन, आर द लेक ऑफ कंटेंटमेंट यानी डिसकंटेंट यानी तकलीफ या दुख। सो गाइस हम चलते हैं अब हमारे तीसरे स्टिंजा पे। सो क्लास हम चलते हैं अपने अगले स्टिंजा पे। इसमें कहता है कि भाई डेट मैन नीड्स नीदर टावर्स नॉर आर्मर फॉर डिफेंस। एक ईमानदार बंदे को ना ही बड़े बड़े टावर्स का यहाँ पे मतलब निकलेगा बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, ना ही इस बंदे को कोई बड़ा बंगला चाहिए, ना ही कोई बिल्डिंग चाहिए, और ना ही अपने आप को बचाने के लिए कोई शील्ड चाहिए। और डिफेंस आर्मर यानी एक लोहे की शील्ड जो होती है, जो कि ज़्यादातर लड़ाइयों में फिल्मों में भी इस्तेमाल की जाती है, आपने देखा होगा क्लास। और आगे कहता है कि नार सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, और इसे ठंड से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लास नीचे चलते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स पे। द टावर मीन्स अ बिल्डिंग एंड आर्मर मीन्स प्रोटेक्टिव मेटल कवरिंग, यानी एक लोहे से मतलब ढकी हुई चादर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और डिफेंस यानी प्रोटेक्शन। और वाल्ट क्लास हम उसे बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे बंदा छुपे। और वायोलेंस यानी तशद्दुद, सेवरिटी, फोर्स और फेरोसिटी और इंटेंसिटी, ये इसकी क्लास सेम मीनिंग से। तो चलते हैं चलो क्लास फोर्थ स्टेंजा पे। इसमें क्या कहते हैं कि ही ओनली कैन बिहोल्ड यानी देखना, विथ एन अपराइट हैंड आइज। गाइस ये कहता है कि जो भी कुछ इसके साथ होता है ये उसे बस खुली बेखौफ आंखों से देखता रहता है। अब किन चीज़ों को ये खुली आंखों से देखता रहता है बेखौफ आंखों से? वो चीज़ें ये है द हॉरर्स ऑफ द डीप, यानी ऐसी आफतें जो नीचे ज़मीन से आती हैं, जैसे सैलाब हो गया, पानी आ गया, मतलब जलजला आ गया। एंड द टेरर्स ऑफ द स्काइज, और वो आफतें जो आसमान से आती हैं, जैसे भाई बारिश आ गई, तूफान आ गया। स्काइज का मतलब नीचे लिखा हुआ है हेवियंस यानी ऊपर से, या स्पेस सीन फ्रॉम द अर्थ, जो ऊपर से यानी आफतें आती हैं। और डीप यानी डीप सी, और टेरर यानी एक्सट्रीम फियर यानी बहुत ज़्यादा खौफ। तो गाइस इस स्टेंजा में शायर ये कहना चाहता है कि भाई जो भी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियाँ इससे नीचे ज़मीन से आती हैं या ऊपर आसमान से आती हैं, वो उन सारी की सारी तकलीफ़ों को फेस करता है और बेखौफ आंखों से उसे देखता रहता है और उनका सामना करता रहता है। सो क्लास द मोस्ट अमेजिंग एंड अम्यूजेबल स्टेंजा, ये 5 नंबर है। इसमें कहता है कि दस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स दैट फेट आर फॉर्चुनेट ब्रिंग्स। स्कॉर्निंग का मतलब ये गाइस कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसमें कहता है कि भाई किस्मत इसके लिए क्या लेने वाली है या क्या लेकर आने वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है, पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा या अगले पल में क्या होगा, ये हम सोचते रहते हैं। पर ऐसा बंदा, अपराइट बंदा, जो कि अपनी ज़िंदगी यानी ईमानदारी के साथ गुजारता है और उसूलों के साथ गुजारता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस्मत उसके लिए क्या ले के आने वाली है। ही मेक्स द हेवियन हिज बुक हिज विजडम हेवियनली थिंग्स। ये अपने आप को यानी उन चीज़ों के बारे में या उन चीज़ों के लिए सुप्रद अपने आप को कर देता है, उन चीज़ों के लिए अपने आप को हवाले कर देता है जो चीज़ें यानी इसके लिए फ़ायदामंद होती हैं। जैसे कि भाई हैवी इन हिज बुक, यानी वो ही एक्ट अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ डेड बुक विच इज़ गिवन टू हिम बाय द गॉड। सो हिज विजडम हेवियनली थिंग्स, और ये अपने आप को यानी जन्नत के लिए अपने आप को तैयार करता है, यानी गुड डीड्स करके अपने आप को यानी जन्नत में जाने के लिए तैयार करता है, या हेवियन में जाने के लिए तैयार करता है, अच्छी जगहों पे जाने के लिए तैयार करता है। अच्छी जगह यानी हेवियन, ठीक है। सो क्लास हम चलते हैं अपने छठे स्टेंजा पे कि इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि गुड थाट्स इज ओनली फ्रेंड्स। अब इसके जो दोस्त हैं ना, वो इसके अपने अच्छे इखलाक और अच्छे आदाब और अच्छे थाट्स हैं, यानी ये अपने माइंड में हमेशा अच्छे अच्छे थाट्स रखता है। अब यही थाट्स इसके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो कि इससे कभी नहीं छोड़ेंगे। और इज वेल्थ अ वेल स्पेंट एज, और ये उतना ही कमाता है, मतलब ये उतना ही कमाता है या इसके पास उतनी ही दौलत होती है जो कि ये खर्च कर सकता है, यानी ज़्यादा ये अपने पास दौलत नहीं रखता। द अर्थ हिज सोबर इन, सोबर इन का मतलब होता है, ये क्लास इन का मतलब होता है मुसाफिर खाना। नीचे लिखा हुआ है अ टेम्पररी अबाइडिंग प्लेस और अ टेम्पररी अबोर्ड। अबाइड का मतलब होता है रहना,
तो गाइज ये इस दुनिया को, इस ज़मीन को एक मुसाफिर खाना समझता है, एंडिफाइड पिलग्रिमेज, और वहाँ पे एक मुसाफिर की तरह रहता है, और वहाँ पे एक जर्नी, जैसे बंदा जर्नी पे जाता है तो एक टेम्पररी के तौर पे जाता है, तो यानी पोएट इसमें कहता है कि द अर्थ इज सोबर इन एंड क्वाइट पिलग्रिमेज, और ये ज़मीन जो है ये इसके लिए एक मुसाफिर खाना है जहाँ पे ये सफ़र करता है, यानी ये इस दुनिया को एक टेम्पररी चीज़ समझता है, एक टेम्पररी प्लेस समझता है जहाँ पे ये जर्नी करता है। ठीक है क्लास? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द समरी ऑफ दिस पोएम। सो क्लास हम इस समरी को इंग्लिश में और उर्दू में दोनों ही सबटाइटल में बयान करेंगे, एंड वी विल डिफाइन इट क्लियरली एंड विविडली बिफोर यू। So class, you watched the slides that were based upon the stanza of the poem, which we defined it in detail. So guys, let's move towards the summary of this poem. So let's move toward the summary slide, and we must enjoy it. So class हम चलते हैं इस poem पे। This beautiful poem, The Man of Life Upright, is written by the Thomas Campion. In this poem he describes an upright man. क्लास ये खूबसूरत नज़म एक दयानतदारी की ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान थॉमस कैम्पियन ने लिखी है। इस नज़म में वो एक नेक इंसान की वजाहत करते हैं। Furthermore, he says an upright man's heart is free from all kind of the evil deeds like dishonesty, fraud and enmity. Is owner of the good character. शायर कहते हैं कि एक नेक इंसान की दिल हर तरह के बुरे कामों से दूर होती है, जैसा कि बददियानती, फरेब और अदावत। वो एक अच्छे किरदार का मालिक होता है। क्लास He says an upright man is always happy and has no false hopes of getting rich in his material world. शायर कहता है कि एक नेक इंसान हमेशा खुश रहता है और इससे इस मादी ज़िंदगी में अमीर बनने की कोई झूठी ख्वाहिश नहीं होती। He has no fear of the harsh weather because he believes that God will save him from these hardships. उसे खराब मौसम का भी कोई डर नहीं होता क्योंकि इसका ईमान होता है कि खुदा इसे इन मुश्किलात से निकाल लेगा। He says an upright man doesn't care about his destiny because he knows that doing good deeds will get him to the paradise. शायर कहता है कि एक नेक इंसान को इसकी कोई गर्ज नहीं होती कि इसकी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन वो जानता है कि इसके नेक अमाल उसे जन्नत में ले जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका देंगे। Class, he always thinks गुड फॉर द पीपल एंड स्पेंड हिज लाइफ सर्विंग ह्यूमन बींग्स। वो हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचता है और अपनी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत करने में गुजार देता है। एंड लास्ट, ही रिगार्ड्स दिस वर्ल्ड एज अ टेम्पररी होम एंड ही नोज दैट हिज गुड डीड्स विल हेल्प हिम इन द एंड ऑफ लाइफ। वो इस दुनिया को एक आरसी घर ख्याल करता है और वो जानता है कि इसके अच्छे अमाल अब्दी ज़िंदगी में इसकी मदद करेंगे, जो ज़िंदगी हेवियन, आफ्टर दिस वर्ल्ड वी विल कम इन टू द हेवियन। So in that heaven, these deeds will help us in order to get us to give us a lot of the huge success in our lives. So class, ये थी हमारी पूरी समरी जो कि पूरी हो गई। So class, thanks, bundle of thanks for you that you gave your precious time to this video, to listening this video. So guys, again I will be with you in the entire video, and I also bring an entire video, brilliant poem for you. As usually we will define it, we will make it more amazing for you. So for this, guys, thank you very much and have a nice day to all of you.